Yes, sir. Now there are two possibilities. Again, one when we are coming for loading, and second when we are discharging. After discharging also sometimes the ship has got a trim and something remains unpumpable, what we call ROB. So that also can be in this form if the ship is in a trimmed condition. If the ship is not in a trimmed condition, if she is upright or she is even keel, then of course the oil measurement was very easy. 2 centimeter, 5 centimeter length breadth into the this 5 centimeter I can calculate volume. But if the oil or the mixture it forms in the tank in this condition, and I have my ullage port here. Now when I take the ullage, now of course all of us know that UTI, we lower this tape and we get this ullage with the UTI, what we call UO. Now with this ullage I cannot calculate anything. Now to estimate first whether the oil is in this form in my tank, or it can be possible that the oil is in this form. It may not have accumulated aft, but it is touching the forward bulkhead. If the oil is touching the forward bulkhead, then the wedge is not forming. In this case, no wedge forms. Whereas in this case, if the oil surface is like this, then we call it there is a wedge formation. If the surface of oil in the tank is like this, it is not touching the forward bulkhead, then we can say there is a wedge formation. So that means the first question comes to us that we have to determine whether the wedge is forming or not, whether the wedge is existing or not in the tank. सर यहाँ पे सर एक डाउट पूछनी थी, यूटी करेक्टेड एलेज होता है ना सर, यूटी हम लेते हैं ना करेक्टेड एलेज? यस, ठीक है सर। एक क्वेश्चन में शायद आंसर में ना कुछ और लिखा हुआ था, कई बार चेंज हो सकता है या कई बार चेंज हो जाता है। इट इज नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट, और कई बार यूपी भी हो सकता है कि आप जैसे कह रहे हो कि यस यूपीटी, दिस इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। सो अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यूटी ऑल द टाइम है। उसको आप यूटी को ऊपर भी रख सकते हो, पी को नीचे भी रख सकते हो, एबीसी में भी जा सकते हो, एक्स वाई जेड, अच्छा किसी में भी जा सकते हो। ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है कि आप हम इसको करते जाते हैं, तो वी आर कीपिंग दिस यूओ ऑब्जर्व्ड एलेज इज जस्ट अ कस्टमरी। ठीक है। कई बार चेंज हो जाता है, कई बार आई डोंट रिमेम्बर, मैं इसको अब इसी में है कि आई वोंट रिमेम्बर, तो मैं इसको अलग अलग नेम करता जाऊंगा कि ओके ए बी सी डी इज अ टैंक। अब मैं इसको कह देता हूँ ओके एल, या किसी और पॉइंट को इसको मैं कह देता हूँ के। ठीक है सर। मैं सोचा कि वो फिक्स है, ओ यू मतलब ऑब्जर्व्ड एलेज। नो नो नो, दैट्स व्हाई द स्केच। ठीक है सर। आप इसको कुछ भी नेम दे दीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब सपोज मेरे पास नाउ वी हैव टू सी here whether oil in the tank is like this or it is touching like this. If it is touching like this, then the wedge is not forming. Then हमारी normal calculation as usual जो हमने कल की थी, observed एलेज, apply the corrections and we can calculate. But if the oil is in this formation, oil is accumulated aft, and then how do we do? So first question, accumulate aft means कितना distance पे, ऐसा कुछ नहीं है ना? We don't know. Just imagine tank में है, she has got 1 meter, 2 meter, 3 meter trim, and now the oil has come aft. Forward में नहीं है, अब हमें नहीं पता वो कहाँ तक है, यहाँ तक है, कितना है? Until it is not touching the forward bulkhead, तो wedge form हो जाएगा. Correct, very right. Then only the wedge forms. So first thing we have to do is to establish if wedge is forming or not. If the wedge is forming or not.
So how do we do this? It is very simple. But we have this DL, this length DL. If it is less than DC, if DL less than DC, wedge forms. Second case, if DL, this DL is more than or equal to DC, no wedge forms. तो सर टैंक के दोनों पोर्ट से एलएच लेके देखेंगे हम No need. साइड से No need. हम यहीं पे एक ही एलेज है, यहाँ से हम देखेंगे. We will calculate. Very simple. So now this is what I have to determine whether the wedge is forming or not. How do we determine? If this length DL is less than DC, wedge is forming. If DL is more than or equal to DC, wedge is not forming. तो सर इस लेंथ का कैसे पता चलेगा सर, विजुअली देख के या मतलब? हम आते हैं इसी की कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन. सर ओके. ओके, अब आपके पास ये एलेज आ गई UO. अब मैं यहां से आई एम कमिंग लाइक दिस इज U. इसे मैं T कह देता हूं, इसे मैं M कह देता हूं. Now I got the edge. This is perpendicular, touching the oil surface. Definitely the bob or the tape will touch this oil surface at right angle. ये मेरे पास UT है, ये मेरे पास TM है. अब मेरे को क्या डिटरमिन करना है कि यार ये जो TM है इसकी वैल्यू कितनी है. If I come to know the value of TM, now this is again a right angle triangle. I can calculate the length ML because ये जो एंगल आपका this is angle theta, same trim angle. If I can know TM, I can calculate ML and ये DM क्या चीज है? Same distance your allege port is forward of the aft bulkhead, which will be given to me. Now if I know ML, I know the DM plus ML. I can calculate if it is less than TC. This DC is what? DC is the basically your length of the tank. Length of tank. It is not LBP, it is length of tank. अब आपके सामने I think we have a simple same triangle UOP. सर एक बार फिर से बता देना सर एक बार. चलो वापस मिटाते हैं. अब मेरे टैंक में ये ऑयल सरफेस है, ट्रिम हुई, आई डोंट नो ये कितना ऑयल है, कितनी लेंथ तक है. मेरे पास ये एलेज पोर्ट था, मैंने यहाँ से एलेज ली, मेरे को ये एलेज मिल गई UO, which we call the observed एलेज. लाइन स्ट्रेट नहीं होती. इसको मैं T बोलता हूँ, इसे मैं M बोलता हूँ. I have just taken this allege UO and I want to establish whether the oil is up to here or up to here. If the oil is up to here, then I know it's a wedge formation is taking place. The oil is in the shape of wedge. Then I have to calculate the volume of this wedge. But if this oil surface is touching the forward bulkhead, then wedge is not forming. Then it is just a normal case. If the oil is in this form, then जैसे हमने पहले यूजुअल किया है, हम वो वाला मेथड लगाते हैं. So let's see. अभी मेरे पास एलेज मैंने ली है and I want to calculate whether the wedge is forming or not. So I take this triangle UOP, triangle UOT, not P, it is triangle UOT, ये वाली triangle. UO upon UT is equal to same cos theta. This angle and this angle, these are basically the same trim angles. UT will be equal to
UO सर इस केस में सर यूओ परपेंडिकुलर होना चाहिए ना सर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बन रहा है वेज के ऊपर. yes, UO is perpendicular. But cos theta is base upon hypotenuse ना. Again, yes, this is a base. This is a But hypotenuse. मैं उसको परपेंडिकुलर सोच रहा हूँ क्योंकि यू को यूओ सीधा परपेंडिकुलर उसके ऊपर. OT is not the perpendicular. आपका ये perpendicular है, ठीक है? यूओ इज परपेंडिकुलर सर. Yeah, UO is perpendicular to this oil surface. एंड सर हम यूओ को तो बेस ले रहे हैं ना यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यूओ को बेस क्यों ले रहे हैं फिर सर हम? ये एंगल के रिलेशन में लेंगे ना, थीटा के रिलेशन. बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में the side opposite to your angle is perpendicular. The side opposite to the angle is always the perpendicular. ये सर पुराने कंसेप्ट. Okay. ठीक है सर, ठीक है सर. Okay. तो ये आपका UO बेस, ये हाइपोटेन्यूज UO अपॉन UT. सो UT इज इक्वल टू UO अपॉन cos थीटा. मेरे पास UT की वैल्यू आ गई. तो बेसिकली इट इज नथिंग, इट इज जस्ट observed allele upon cos theta. UM, what is UM? Total height. यूटी प्लस टीएम हो जाएगा सर. No, UM is just total height. मेरे के टैंक की हाइट प्लस द allele port. Suppose this allele port is 1 meter above the deck and the height of the tank is 20 meter. So I know UM is 21. ठीक है, ठीक है. टोटल हाइट है सर, ठीक है. टोटल हाइट. UT की वैल्यू मेरे पास आ गई. कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ TM? यस सर. UM minus UT. UM minus UT. I know the value of TM. Now I consider triangle TML. Triangle TML. अब ये जो मेरी ट्रायंगल TML है, इसमें मेरे पास क्या क्या नोन है? I know the angle theta. I know TM. I can very well find out ML. In this case, TM upon ML is equal to tan theta. और मैं इसे लिख सकता हूं ट्रिम अपॉन LBP, जो भी आपको आसान लगे. Isn't it? So ML will be equal to, चलो पहले यहीं तक रहने देते हैं. ML इंटू tan थीटा कर देते हैं. ML is equal to TM अपॉन tan थीटा. मेरे पास ML की वैल्यू आ गई. ML is equal to TM upon tan theta. DM is known to me. How many meters? The allege port is forward of the aft bulkhead. DM plus ML. So I can calculate the value of DL. Therefore, DL is equal to DM plus ML. ये दोनों quantities मेरे पास known आ गई. If this DL is less than, now if this DL, if DL less than DC, wedge is existing. I assume in this case, suppose a wedge is existing. It is in this form, जैसा हमने sketch बनाया. The oil in the bottom of the tank is in this form. Now how to calculate the volume? Volume of wedge. Now to calculate the volume of wedge, again मैं इसे K कह देता हूं. Now I take this triangle KDL, bigger triangle. Triangle KDL. I hope can you see? All of you can see on this side also. Yes sir. Now I consider triangle KDL. DL is known to me. मैंने कैलकुलेट कर लिया DL. DM सपोज 2 मीटर, 3 मीटर, एंड ये आपके पास आ जाता है 10 मीटर. 10 plus
13 meters. Tank is 30 meters. So definitely DL is known to me. In triangle KDL, KD upon DL, again perpendicular plane base, is equal to tan theta. DL मेरे को पता है, KD मेरे को निकालना है, tan थीटा पता है, तो मेरे पास KD की वैल्यू आ जाएगी. Now once I know the value of KD, I can find out the area of this triangle, half base into height. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये जो triangle बनी है, now try to look. This is a tank I am looking from. I am standing on the jetty and I can imagine कि inside my tank from the side. Now this oil is in this formation. Area of triangle KDL is equal to half into KD into DL. और इस एरिया को मैं मल्टीप्लाई करता हूं विद द एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द टैंक. Multiply with the entire breadth of the tank. What do we get? Volume of the wedge. Volume of the wedge will be equal to half KD into DL into the breadth of the tank will give me the volume of the wedge. अब क्वेश्चन में आपको आता है कि ओके, इनिशियली द शिप कम्स और शिप हैज कम लोडेड, आपके पास उसने अलेज दे दिया है और इनिशियली दिस वाज द अलेज 1 मीटर. इनिशियल भी शी इज इवन कील और 1 मीटर ट्रिम. आई कैन कैलकुलेट द टोटल ऑयल इन द टैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिस्चार्ज. द अलेज, whatever he says, 20 meter or 20.1 or 20.2 allege was obtained. Now calculate the quantity of oil discharged. So initially what do? I calculate the total oil with my normal case, correct the allege, find out the GOV, VCF into only volume तक ही रखेंगे. We will not find out the weight last में. And then on completion I got some allege. मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की, टोटल जितना था उसमें से माइनस किया, दैट इज ऑयल डिस्चार्ज. और एनी अदर केस, शिप कम्स एंड यू फाइंड समथिंग व्हाट वी कॉल OBQ. अभी आपको इनिशियली आपका टैंकर आया, सर्वेयर ने चेक किया एंड यू फाउंड सम allege is there, and what we get this OBQ. So same way we will go and find out the wedge is forming. This is the OBQ. अब आपने टैंक को लोड किया and you got the final allege 1 meter, 1.2 meter. Calculate how much oil is loaded. तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी था 20 मीटर क्यूब या 22 मीटर क्यूब ऑलरेडी वाज एग्जिस्टिंग इन द टैंक, एंड देन आई लोडेड, उसका मैंने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया. So total minus whatever OBQ was, that is the quantity terminal as given. Any doubts, anybody? कहीं पे भी कुछ भी है, बिकॉज अगर ये बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. And in case नहीं आएगा ना लिस्ट? नो, वेज में वो लिस्ट नहीं देगा. हाँ सर, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. फिर IIT वालों के पास जाना पड़ेगा, खड़गपुर. नहीं, नेवल आर्म खड़गपुर वाले पढ़ाते हैं सिर्फ, नहीं. बाकी IITs में है ही नहीं. चलो, तो ये है कि इनिशियली द क्वेश्चन, आई विल शो यू वन क्वेश्चन वी विल डू, इट विल बी मोर क्लियर. इनिशियल क्वेश्चन उसने दिया है कि ठीक है, जो भी मेरे कॉलेज है, एंड दिस इज नॉर्मली, मैं भी इसमें थोड़ी वेरिएशन है, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू.
फर्स्ट वी विल डू कि उसने मेरे को ये यूओ दी हुई है 18 मीटर 19.5 20.5 जितनी भी उसने मेरे को ये अलेज दे दी एंड आई विल कैलकुलेट वेज इज फॉर्मिंग। वेज का वॉल्यूम निकालता हूँ, टोटल वॉल्यूम टैंक का फाइनल अलेज के साथ कितना है एंड वी डू दैट। उसके बाद हम इसके साथ दूसरी वेरिएशन करेंगे। चलो ये क्वेश्चन सर करके एक जो मिनट, राइट साइड व्हाइट बोर्ड देखना है सर, एक मिनट। सर जो राइट साइड में लिखा सर आपने ये केडी की वैल्यू दी रहेगी इस समय? केडी हम देखो निकालेंगे। ये केडी हम कैसे निकालेंगे? अच्छा ट्रायंगल। बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे ये वाली। नाउ वी टेक फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केडी वी टेक दिस ट्रायंगल, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ओके केडीएल। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कि केडीएल लिया, थीटा इज नोन टू मी एंड डीएल इज नोन टू मी, क्योंकि डीएल मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, डीएम प्लस एमएल। यस थीटा नोन है, ये नोन है, परपेंडिकुलर, इसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ केडी की। केडी अपॉन डीएल इज टू tan थीटा, केडी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार केडी की वैल्यू आ गई, फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई बाय द एंटायर ब्रेड्थ ऑफ द टैंक वॉल्यूम ऑफ द वेज। ओके सर। चलो गुड। सर एक मिनट सर, थोड़ा देखना है सर व्हाइट बोर्ड, एक मिनट सर। ठीक है सर, हो गया। I hope guys can read, can see the slide. यस सर। यस Yeah, Yes, tank sir. dimensions. Yeah, tank dimensions given. LBP density on completion of loading, vessel trimmed 3 meter by stern, and the allege observed using sonic tape 1.24. अब आपने लोडिंग की है, आपके पास टैंक इज फुल, 1.24 मीटर अलेज पे आपने टैंक को लोड किया है। टेम्परेचर डेंसिटीज आर गिवन। वाटर डिप अलेज ऑफ 20.94 was also found एंड अलेज पोर्ट की लोकेशन दी है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल। अब इसमें हुआ क्या कि आपने ऑयल लोड किया 1.24 पे, एंड जब हमने इसकी वाटर डिप ली, वो भी हमने एमएमसी से ली, दैट मीन्स देयर इज अ फ्री वाटर डाउन बिलो। अब वो कितना है, अगर हम फ्री वाटर को टोटल वॉल्यूम से माइनस करेंगे, दैट इज द ऑयल टर्मिनल हैज गिवन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द क्वांटिटी ऑफ ऑयल। लिख लीजिए इसको, थोड़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर वापस बोर्ड पे करते हैं।
सर डीएल की वैल्यू आ रही है 12.107। 19.536 डीएल की वैल्यू कितनी आई? 19.536। नो बच्चे, डीएल आपका आ रहा है 12.133। यस सर 12.107 है, तो ठीक है। ठीक है, इसके सामने मैंने आपको लिख दिया हिंट, obtain the volume of oil and water in the tank, consider the water alone and establish a wedge forms or not, and if yes, do the wedge calculation, obtain the volume of water, subtract the water volume and obtain the volume of oil. सर एक बार बोर्ड पे ही सर थोड़ा समझा दीजिए, नहीं आ रहा है इसकी वर्किंग ना। कर लेता हूँ, कोई नहीं। लिख लिया आपने, सबने लिख लिया? हाँ सर, थोड़ा उसको बोर्ड पे ही करवा दीजिए, बैठ नहीं रहा सर वर्किंग ना। कल तो समझ में आ गया था पूरा। ओके ओके ओके। अब क्वेश्चन में उसने आपको पहले दिया, इनिशियली ही हैज गिवन यू सर्टेन अलेजेस, कितनी है? 1.24, isn't it? यस सर 1.24 है सर। या इनिशियल आपके पास 1.24 है, तो उसको आपने करेक्ट किया तो कितनी आ गई करेक्टेड अलेज? थोड़ा बड़ा बनाते हैं। UO 1.24, UT UP theta now in this question what he has given me initially is that the 1.24 and trim is 3 meters. So मेरी corrected allege आ गई, will be observed allege divided by cos theta plus L by 2 minus A into trim upon LVP. लिस्ट भी है? लिस्ट नहीं है। या नो लिस्ट देयर, सो ओके। सो इनिशियली अगर हम देखें, अगर हम इसको करेक्टेड अलेज को देखते हैं, ये जो आपकी होती है, दिस इज योर टेप करेक्शन, दिस इज बेसिकली योर ट्रिम करेक्शन। वन 1.24 cos theta की वैल्यू आई थिंक cos of 0.86, यस सर 1.24 ही रहेगी। What we call is the tape correction, trim correction, L by 2 minus A। तो अगर मैं ट्रिम करेक्शन को देखता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आई आपकी?
tank is 40 meter, 40 by 2 minus A कितना है? 1.6 है सर. Yeah, minus 1.6. This is L by 2 minus A into trim upon LBP, 3 meter trim. इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आया? टेप करेक्शन, trim correction, finally corrected allege is equal to 1.24 plus 0.276. यही है ना? Yes sir. Yes. 516. Yes sir, ये ओके, ये तो अलेज थी. सो हाइट ऑफ ऑयल या साउंडिंग जो भी आप लिख सकते हो. तो कैलकुलेट द वॉल्यूम. 20 मीटर मेरा टैंक है. अलेज बोर्ड कितना ऊपर है? 1.1, isn't it? Yes sir. This is 1.1 minus 1.516. Total height, allege port 1.1 minus the allege will give me the height of oil. कितनी आ गई? 19.20 plus 1 minus 19.584. Yes sir. हमने टेप करेक्शन, ट्रिम करेक्शन, करेक्टेड अलेज निकाल ली. एंड नाउ आई कैन कैलकुलेट द ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. और आप इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर और वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस वाटर. इट्स नॉट अ मिक्सचर, इट इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस वाटर will be equal to I think 40 into 20 into 19.548. मैं इसको वॉल्यूम तक ही रखूंगा. कितना आ गया? मतलब ये TOV हो गया ना सर, ये TOV. या TOV भी कह दीजिए, टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, वो भी कह सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस वाटर भी कह सकते हैं. जो भी आपको आपकी टर्मिनोलॉजी है, ताकि हम बेसिकली एग्जामिनर को ये कह रहे हैं कि दिस इज द इनिशियल मेरे टैंक में था ऑयल, वाटर, टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, TOV 1566 7.2. इसको नो नीड टू कन्वर्ट टू मेट्रिक टन, लीव इट लाइक दिस. VCF WCF हम नहीं लगाते, वी स्ट्रेट वे कैलकुलेटिव इतना वॉल्यूम मेरे टैंक में है. अब इसी फिगर में या आप सेकंड फिगर भी बना सकते हो. हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर. दैट इट इज इन दिस फॉर्म. एंड उसने मेरे को वेज की अलेज दी है. हाउ मच इज अ वेज की अलेज? 20 point something. 20.94. 20.94. 20.94. तो मैं इसको ऊपर थोड़ा ऊपर वाले को रब आउट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो यू कैन मेक अनदर स्केच आल्सो, नो इश्यूज. मेरे पास ये इसने दे दिया 20.94. एज यूजुअल UO, UT, M, L, ये मेरा D एंड ये K. $20.94 U है. UT कैन बी कैलकुलेटेड. इसको रब आउट कर दूं. Sir, how did we calculate volume of oil plus water? अच्छा, इनिशियल हमने कैलकुलेट किया ना, हमें अलेज दी है 1.24 एंड शिप हैज गॉट अ 3 मीटर ट्रिम.
जो मैंने यहाँ पहले किया था, इनिशियल स्केच बनाया था ना, यूओ हमें दी थी उसने 1.24 एंड ट्रिम वाज गिवन। ये आपका करेक्टेड अलेज हमने निकाली उससे 1.24 को टेप करेक्शन ट्रिम करेक्शन लगाई, करेक्टेड अलेज आ गई 1.56 मीटर्स। यस सर, हाइट ऑफ ऑयल तक समझ आ गया, वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस H2O कैसे आया? अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू द हाइट ऑफ ऑयल। आपका ये टैंक है ना स्ट्रेट वे, इस टैंक का मेरे को अगर वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का तो क्या करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसके अंदर कितना तेल है? सर पर ट्रिम का फर्क नहीं पड़ेगा इस पे? अच्छा, हमने ट्रिम से अलेज करेक्ट की है ना, वी हैव करेक्टेड। हमें टैंक है उसमें मेरे को उसने अलेज दी है। गॉट इट सर, गॉट इट गॉट इट। अलेज से हम हाइट ऑफ ऑयल निकालते हैं, साउंडिंग निकालते हैं, वो हमने पहले अलेज को करेक्ट कर लिया है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। या ओके, तो ये वॉल्यूम हमारे पास आ गया, हमने इसकी अलेज को करेक्ट कर लिया। एंड नाउ वी वांट टू सी वेदर द वेज इज एग्जिस्टिंग और नॉट। एंड इफ द वेज इज एग्जिस्टिंग, then how do we calculate the volume of wedge? So to establish, आपका next step आ जाएगा to establish if wedge is forming, if wedge is existing. अब to do this, हमने ये sketch बना लिया जो आपके सामने है। Now we take triangle UOT, triangle UOT, UO upon UT is equal to again cos theta, same trim angle, UT is equal to UO upon cos theta. UO is known to me 20.94 is equal to 20.94 डिवाइड बाय थीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी? 0.86 0.999 समथिंग इट वाज देयर। सो ये आपकी 20.94 वैल्यू आ जाएगी, 20.942 UT। एनीबडी, एनी डाउट यहां तक? हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं UOT को, UO इज नोन टू मी 20.94, मेरे को UT निकालना है। मैंने ये ट्रायंगल ली, UO अपॉन UT इज इक्वल टू cos थीटा, उसकी वैल्यू UT की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 पॉइंट, सेम होगी ऑलमोस्ट। चलो हम थर्ड डिजिट तक गए 20.942। सर ये थीटा ट्रिम बाय LBP ले लेना, 3/200 लेंगे ना ट्रिम, जो थीटा है वैसे भी कर सकते हैं, यस। तो उसमें 0.15 आएगी, 0.015, तो उससे हमसे 20.969 आएगा UT का। UT कितना आ रहा है? 20.969 आएगा उससे। नहीं नहीं सर, यही आ रहा है सर, 20.942 सर सही आ रहा है सर, 942 859 आ रहा है। करेक्ट। नहीं सर, उसमें थीटा की वैल्यू कैसे ले रहे हैं? 0.859 थीटा की वैल्यू 3/200, थीटा की वैल्यू आप ट्रिम tan थीटा 3/200, तो थीटा 3/200 की वैल्यू निकालिए। 3/200 की वैल्यू कितनी आई? tan इनवर्स कर देंगे। हाँ सर, वो तो टॉस इनवर्स हो गया वैसे, ठीक है सर, इनवर्स हो गया सर, वो टॉस इनवर्स कर दिया था। चलो UT आपके पास आ गया 20.942 एंड नाउ आई कैन कैलकुलेट TM। TM इज इक्वल टू UM कितना आपका? 158 आ रहा है सर, डेसिमल 158 TM। 20 प्लस 1.1 मीटर ये हाइट है,
माइनस मैंने यूटी कर दिया 20.942, तो मेरे पास टीएम की वैल्यू कितनी आ गई? 0.158. वेरी गुड। तो अब मेरे पास ये टीएम जो है इसकी वैल्यू है 0.158। अब मैं ट्रायंगल टीएमएल ले लेता हूं। ट्रायंगल टीएमएल, ये वाली ट्रायंगल, इसमें टीएम मेरे को पता है, थीटा मेरे को पता है। आई थिंक एमएल की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। ट्रायंगल टीएमएल, टीएम अपॉन एमएल इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपने इजी करना है तो या ट्रिम अपॉन एलबीपी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इस इक्वेशन से एमएल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एमएल 10.526. टीएम अपॉन tan थीटा कितनी आई बच्चे? 10 10.526. 526। Yes, sir. ओके, इधर है। अब मेरे पास एमएल की वैल्यू आ गई 10.526 मीटर्स, ये एमएल है। डीएम की वैल्यू मेरे को पता है, हाउ मच इज द डीएम? 1.6। Yes, sir. Tonnage port, how many meters forward of the aft bulkhead? तो ये मेरा 1.6 है। Therefore, तो इसको हम याद रखेंगे 15667.2। Therefore, DL is आंसर इसमें ml की वैल्यू कुछ और आ रही है, 10.3 समथिंग आ रही है। 10.53 आनी चाहिए, 10.533 या 526। सर 10.526. सर 536 है, 538 आ रही है। कोई बात नहीं, मतलब आ रही है। थीटा अगर ये दिया हुआ है 526 ही आ रही है। 86 तो 0.526 ही आएगी। 10.54 10 एग्जैक्टली 10.538 आ रही है सर। कोई बात नहीं, उसको भी ले लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10.538 ले लो, 5.26 ले लो, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। नहीं सर वही लेना है ना सर। सर थीटा तो सर थीटा तो 0.86 सेम ही ही लेना है। थीटा सेम ही रहेगा ना सर? करेक्ट, तो यही वैल्यू आ रही है सर। तो यही है। थीटा नहीं चेंज होगा, थीटा ट्रिम एंगल वो नहीं चेंज होगा, वो 3/200 इनवर्स tan कर दो तो वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, करेक्ट। सो डजंट मेक अ डिफरेंस, आप इसको बल्कि राउंड अप कर दो, 10.53 कुछ भी आ रही है, 5253 कर दिया, इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। अभी आप देख लीजिए, डीएल आ गया मेरा 1.3 प्लस 10.53 मैंने ऐड किया तो 11 पॉइंट और 12.9 या 12.16 और 13 3 1 10 11 और 1 12। दैट मीन्स ये जो आपकी टोटल लंबाई है डीएल, आपका ऑयल यहीं तक है 12.13 फ्रॉम द आफ्ट bulkhead। दैट मीन्स द wedge is forming because it is less than DC। ये मेरा टैंक था ABCD, so oil is only up, it is not touching the forward bulkhead, that means the wedge is forming। So this is the way to establish first that whether the wedge is existing or not। अब इस केस में मैंने देख लिया अपनी कैलकुलेशन से, this length is coming only 12.13, that means wedge is existing। अगर ये मेरी जो लेंथ है ये 20 या 20.1 आ जाती, that means the oil was touching forward, फिर wedge formation नहीं हो रही। So we can write there is a, so DL is equal to, therefore wedge is forming और wedge is existing। अब मेरे को इसका, I think you can calculate the volume of the wedge। टैंक को 22 मीटर क्यूब आएगा। टैंक को कितना है वैसे? 20.1 22। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वेज।
to calculate volume of wedge. Volume of wedge is very simple. अब मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ आपकी KDL. KDL ये रेड वाली ट्रायंगल ले लेते हैं. अब कंप्लीट इस ट्रायंगल को लेते हैं KDL. So we take to calculate the volume. Triangle KDL, KD upon DL is again equal to tan theta. KD DL की वैल्यू है, tan की वैल्यू आपके पास है. KD की वैल्यू कितनी आ गई? 0.182. 0.182 meters. नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. मेरे पास KD की वैल्यू है, DL की वैल्यू है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वेज 22.069. 22.069. Okay, half 12.13 into 0.182 multiply by the breadth of the tank, 20 meters, I think. 22.069 cubic meters. तो भाई इस वेज में कितना पानी है? इस ऑयल में 22.069 या 07 मीटर क्यूब आपके पास पानी आ गया. टोटल मेरे पास था ऑयल एंड वाटर TOV was 15667.2. पानी है 22.069. Therefore, quantity of oil loaded कितना आ गया? 12. So 15645.2. या 14. ये अपना 22.0777 आ रहा है सर, ये वाला कितना आ रहा है? 22.077 ये जो ऊपर है अपना ये. 22.077. यस सर. कोई बात नहीं, उसको 077 भी ले लेते, डजंट मेक अ डिफरेंस. यस सर. थोड़ा बहुत एक आपको फर्क रहेगा बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन या आप कितने डिजिट पे जाते हो. तो ये आपकी इसको माइनस किया तो 15645 645. या 45 पॉइंट कुछ है. 0.2 आया था मेरा तो. 2 सर. So this is a quantity or GOV. Now this is basically the GOV. क्यों आपने फ्री वाटर इसमें से माइनस कर दिया है. So GOV और the total oil loaded is so much. अब इसका आप VCF and WCF हम निकालते हैं. We can calculate the metric tons. This multiplied by VCF, temperature of the oil is given, multiplied by WCF will be equal to metric ton. तो 12481.216 आएगा टन्स में. 12481 is equal to 12481.216 metric ton. Answer. ठीक है. आई होप. डोंट वरी, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लेंथी लगेगा
तो सर इसमें अगर दूसरा फिगर बना लेंगे तो सही है, Yeah. आपने इस अलग से बनाया। अलग से कोई बात नहीं, यू आर नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टेशनरी। थोड़ा कॉम्पैक्ट भी बनाइए, नीट भी बनाइए, 2 फिगर 3 फिगर से। अब मेरे को खुद पता लग रहा है, फिगर से ही मेरे को दिख रहा है कि यार अच्छा क्या दिया है, क्या मेरे को निकालना है एंड क्या मैंने किया। इंस्टेड ऑफ जस्ट आई कीप एवरीथिंग इन माइंड, व्हाई मैं उसको पेपर पे डालता हूँ एंड आई एम शोइंग इट व्हाट इज हैपनिंग, एंड नीचे आप इसकी कैलकुलेशन करते जाइए। यस सर। या इनिशियल एज दी थी 1.24, उसको मैंने करेक्ट किया। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि ठीक है इनिशियल एज दी है, लिस्ट दी है, ट्रिम दी है, टेम्परेचर दिया है, डेंसिटी दी है, आई कैन इमीडिएटली कैलकुलेट करेक्ट द एज। आपने ये स्केच बना दिया, उसमें लिख दिया कि आपका दिस इज ए, दिस इज द हाइट ऑफ दिस टी एम एल, एग्जामिनर को सब दिख रहा है। नाउ इफ आई राइट द फॉर्मूला करेक्टेड एज इज इक्वल टू observed is upon cos of theta, he knows what is theta, आपने शो किया हुआ, प्लस माइनस एल बाई 2 माइनस ए इंटू tan थीटा कर लीजिए, ट्रिम अपॉन एलपीपी कर लीजिए, बोथ आर इक्वल, प्लस माइनस बी इंटू tan ऑफ लिस्ट। करेक्ट किया एलेज को। सर अगर ये सेम क्वेश्चन रहता और वेज फॉर्म नहीं हो रहा होता तो केवल हम लोग अलेज में ट्रिम करेक्शन लगाते और नॉर्मली उसका अलेज कैलकुलेट कर देते, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम निकाल लेते जैसे कर रहे हैं। उसमें अगर वेज नहीं बनता यही करते ना उस केस में भी। करेंगे बच्चे, आएंगे। ठीक है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद उस पे भी आ जाएंगे, देखते हैं इफ द वेज इज नॉट फॉर्मिंग, और समटाइम ही मे गिव यू द साउंडिंग। आजकल तो एमएमसी आ गई है कि आपको अलेज ही मिलती है। विदाउट वेज भी सर हमने इसमें इंक्लूड किया ना, टीओवी हमने विदाउट वेज ही निकाला है, वो टोटल निकाला। नो टीओवी बच्चे टोटल ऑयल, वो तो हमने अलेज, जो हमें टॉप की अलेज मिली थी 1.24 कि टैंक इज लोडेड, मतलब टोटल निकाल लिया हमने उतने ट्रिम पे सर। यस। नो आई फॉरगॉट द नेम, जो दूसरे वाले कह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग इज दैट इन केस यहाँ पे तो वेज फॉर्म हो रहा है, इन केस इफ दिस वेज वाज नॉट फॉर्मिंग, यहाँ पे ये ऑयल यहाँ तक टच करता होता, तब हम इसको कैसे करेंगे? नॉर्मल केस ही है ना सर, फिर तो मतलब। चलो करते हैं, चाय पी लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है? ओके सर। सब देख लेंगे, सब करेंगे तो फिर श्योर हो जाएंगे। चलो, वी मीट एट 10:15 यस कि 10:20 20 से 20